بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طلباء پر پولیس کا تشدد کا یہ معاملہ ہے۔ فیصل آباد کے ینگ ڈاکٹرز سراپا احتجاج، الائڈ ہسپتال اور DHQ ہسپتال کے آؤٹ ڈور میں کام بند کر دیا۔ علاج معالجے کے لیے دور دراز سے آئے مریض خوار ہونے لگے۔ آپ کو بتائیں لاہور میں ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طلباء پر پولیس تشدد کا معاملہ۔ فیصل آباد کے ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج، الائڈ ہسپتال اور DHQ ہسپتال کے آؤٹ ڈور میں کام بند کر دیا گیا ہے۔ علاج معالجے کے لیے دور دراز سے آئے مریض پار ہونے لگے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ڈاکٹرز اور میڈیکل کے طلباء پر پولیس تشدد کا معاملہ ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ عزادار بتائے گا کیا کہنا ہے احتجاجی ڈاکٹرز کا؟ جی بالکل، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن سراپا احتجاج ہے اور ان کی جانب سے الائڈ اور DHQ ہسپتال کے شعبہ بیرونی مریضہ میں کام بند کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے اور ایسے میں ڈاکٹروں کے احتجاج کے بعد مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے ساتھ پیٹرن ان چیف ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر معروف فیض موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیں کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کل کی تاریخ میں جو لاہور میں ایک شرمناک واقعہ ہوا ہے PTI کی گورنمنٹ کی طرف سے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے جو پیسفل پروٹیسٹر تھے، ہمارے میڈیکل سٹوڈنٹس تھے، ہمارے ہاؤس آفیسرز تھے، ہمارے PGs تھے، ان پہ بدترین ریاستی تشدد کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے، لاٹھی چارج کیا گیا، شیلنگ ہوئی۔ تو اس کے سلسلے میں ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز ابھی بھی زخمی ہیں، 2 ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ICU میں ہیں، کچھ ایمرجنسی میں ہیں۔ تو اس جو ریاستی تشدد کیا گیا، بدترین ریاستی، جو میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بدترین ریاستی تشدد تھا ڈاکٹرز پہ، میڈیکل سٹوڈنٹس پہ۔ تو اس کی جو مطلب رسپانس میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پورے پاکستان میں یک مشت جو ہے کٹھے ایٹ اے ٹائم جو ہے 11 بجے پورے پاکستان میں جو ہے ہڑتال ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، اور ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ایک تو جو جن لوگوں کی ایما پہ وہاں پہ تشدد کیا گیا ان کو فی الفور فارغ کیا جائے، اور میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور میں اس پہ یعنی کہ ہم اس پہ مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے ہیلتھ منسٹر کا اور جو ہے بزدار کا استعفیٰ بھی مانگیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ وسیم اکرم پلس کہتے پھرتے ہیں، اور جو قوم کی کریم آف نیشن ہے، ہماری چھوٹی بہنیں ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو ڈنڈوں سے مارے، آنسو شیل۔ آپ نے اپنا احتجاج، اپنا دھرنا تو 126 دن جاری رکھا، اور آپ سے میڈیکل سٹوڈنٹس کا کریم آف نیشن کا 1 گھنٹے کا جو ہے دھرنا برداشت نہیں ہوا۔ بالکل، ڈاکٹروں کا جو احتجاج برداشت نہیں کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اورنگزیب موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن فیصل آباد الائڈ ہسپتال کے، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیں کوئی مذاکرات ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے، ابھی تک تو ہمارے کوئی مذاکرہ نہیں، ڈیڈ لاک چل رہا ہے۔ جیسے کوئی آپ کو پازیٹیو نیوز آ گئی ہم ضرور شیئر کریں گے، لیکن گورنمنٹ بیسیکلی مذاکرات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب خود تو 126 دن کا دھرنا تو دے دیتے ہیں، لیکن ہمارا 124 منٹ کا بھی دھرنا ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو جیسے کوئی پازیٹیو نیوز آئے گی تو ہم انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ ضرور۔ اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ اگلا لائحہ عمل یہی ہے کہ ابھی ہماری میٹنگ ہے، اس کے بعد ہم لائحہ عمل طے کریں گے کہ ہم نے یہ ڈیلی بیس پہ پروٹیسٹ کرنا ہے یا اپنی فردر سبسڈی وڈرا کرنی ہے۔ وہ یہ کامن کنسنسس کے ساتھ کریں گے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کا ہمارے لیے آگے کیا لائحہ عمل، گورنمنٹ ہمارے لیے کیا اختیار کرتی ہے، اس کے اکارڈنگ ہم اپنی پالیسی بنائیں گے۔ اب اچھا، ہمارے ساتھ صدر بھی موجود ہیں الائڈ ہسپتال ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے احتجاج کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں مریضوں کا کیا قصور ہے؟ کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں بنایا جا رہا جس سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا؟ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو کل ہوا ہے بربریت لاہور میں، اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے مریضوں کا سوال ہے تو اسی لیے پورے پاکستان میں یہ لائحہ عمل بنایا گیا تھا کہ رش کا ٹائم ہوتا ہے 8 ساڑھے 8 سے لے کے 11 بجے تک، اس تک ہم سارے مریض جو ہیں وہ دیکھ لیں، چیک کر لیں، میکسیمم جتنے مریض ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ایک ٹوکن سٹرائک کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج صرف ٹوکن سٹرائک تھی جو کہ 1 سے 1.5 گھنٹے کی تھی، اور اس دوران ہماری ایمرجنسی اور انڈورز ورکنگ تھے۔ تو اگر کوئی پیشنٹ زیادہ سیریس ہے جس کو OPD میں سروسز 1-1.5 گھنٹہ نہیں ملی، وہ ایمرجنسی میں چیک کرا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈاکٹرز کچھ اپنے مختص کر رکھے تھے OPD کے باہر کہ جو مریضوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ بالکل، ڈاکٹروں کا جو ہے احتجاج جاری ہے اور ایسے میں دور دراز سے جو مریض ہیں انہیں علیحدہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاہم ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلا جو لائحہ عمل ہے اس سے بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ جی ڈاکٹرز کا احتجاج جاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عزادار حسین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں مسافر گاڑیوں کی فٹنس چیک کرنے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ مسافروں کی زندگیاں خطرے میں، گاڑی کی بریک کب فیل ہو جائے، ٹائر کب پھٹ جائے، ٹائر راڈ کب کھل جائے، گاڑیوں کی چیکنگ بند، موٹر وہیکل ایگزامینیشن بھی میسر نہیں۔ ٹرانسپورٹرز رنگ و روغن پر ہی اکتفا کرنے لگے۔ فیصل آباد ضلع میں
फिटनेस का अमल कब शुरू होगा? सरकारी अफसरान भी हुकूमती इकदामात का इंतजार करने लगे। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिछले 7 सालों में लाखों हादसा हुए, लेकिन अभी भी गाड़ियों की फिटनेस जो है वो यकीनी नहीं बनाई जा रही। व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम फैसलाबाद अभी भी फाल नहीं हो सका। पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन विक्स यहाँ पर मौजूद नहीं। अफसोस की बात यह है कि ये वो ट्रांसपोर्ट का हब है जहां पर पूरे पंजाब समेत दीगर सूबों को भी जो है वो गाड़ियां भेजी जाती हैं, लेकिन यहां पर मोटर व्हीकल एग्जामिनर भी मौजूद नहीं। हमारे साथ इस वक्त ट्रांसपोर्टर जो वर्कर्स हैं उनके रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियां साहब, ये बताइएगा, गाड़ियां मिसफिट हैं, कौन सी गाड़ी का कब एक्सीडेंट हो कुछ पता नहीं, इसके बावजूद इंस्पेक्शन नहीं हो रही? असल में ये जो आप फरमा रहे हैं ना, जो फिटनेस के हवाले से जो हमें वो दिया गया शाहकोट साहिवाल, और ये सबसे महंगा भी है और बहुत हमारे साथ ज्यादती है। आप देखें कि सारा दिन हमारे वर्कर भी साथ हों, बस भी जाए और सारा उधर जाकर वो सिर्फ पासिंग करनी है, सिर्फ फिटनेस देखनी है, सिर्फ के लिए ये इतना हमें मुसीबत डाली हुई है। तीसरी बात यह है कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है, पंजाब का जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, उसने इतनी ज्यादती की है कि हमारे 2 MV होते थे, यहाँ पासिंग होती थी, रिक्शे की होती थी, लाइसेंस बनता थे, सब कुछ, लेकिन उन्होंने 4-5 महीने हो गए ना, यहाँ MV नहीं है। अभी भी मुझे पता चला है कि कोई MV आया है, लेकिन वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। तो ये हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती है फिटनेस के हवाले से कि मैं आपको बता नहीं सकता। फैसलाबाद एक सेंटर है, मैं ये समझता हूँ पंजाब का सेंटर है। यहाँ फिटनेस के हवाले से जनरल बस स्टैंड में जो भी कुछ हो, लाहौर को जाने वाली गाड़ियां शाहकोट या शाहदरे से फिटनेस करवा लेंगी, लेकिन रिक्शे कहां जाएंगे? जो हर रोज दूसरा हादसा होता है, उनकी फिटनेस कौन चेक करेगा? तो क्या कहेंगे इस हवाले से, हुकूमत क्या कर रही है? सर असल वो भी बड़े तंग हैं, वो कैसे करेंगे जी? वो तो जहां से सवारियां लेकर जाएंगे, उतारेंगे, बैठेंगे, लाहौर वाले भी, सियालकोट वाले भी, फिर वो कराएंगे। ऐसी बात नहीं है, वो उसको खाली चाहिए गाड़ी। वो पहले पूरा वो जहां भी जाएगी बस स्टैंड में या जनरल बस स्टैंड में, पहले गाड़ी फुल होगी, खत्म होगी, फिर वो दोबारा आ जाएगी। ऐसे नहीं होते हो सकती फिटनेस की सवारी पब्लिक अपना ले जाए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इसको नजरसानी करनी चाहिए। हम मुतालबा कर चुके हैं। और यहाँ ज्यादती ये देखे कि जनरल बस स्टैंड में पासिंग होती थी, यहाँ MV नहीं है। वो सेक्रेटरी सुनता ही नहीं है किसी की बात। जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब है वो किसी की बात ही नहीं सुनता। जी बिल्कुल, ये मियां शहबाज हैं जो कि जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एसोसिएशन है उनके सदर भी हैं। उनका कहना है कि हम पासिंग के लिए तैयार हैं, कोई महकमा करे तो सही। अफसोस की बात यह है कि पंजाब के दूसरे बड़े शहर में ना मोटर व्हीकल एग्जामिनर है, ना ही कोई पासिंग का सिस्टम है। जी, गाड़ियों की फिटनेस रोक दी गई है, जिसके बाद हादसात में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात करेंगे कातिल वायरस के मुतालिक। अवाम की बेहतियाती से कोरोना के फैलाव में तेजी। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 142 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। एक मरीज जान से गया। फैसलाबाद में 103, जंग में 30 और चिन्योट में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। टोबा में मरीज जान बहक और 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। आपको बताएं कि टोबा में 1 मरीज जान बहक हुआ है और 2 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। आपको कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि आवाम की बेहतियाती से कोरोना के फैलाव में फिर तेजी आ गई। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 142 अफराद में वायरस की तस्दीक। 1 मरीज जान से गया। फैसलाबाद में 103, जंग में 30, चिन्योट में 7 केसेस रिपोर्ट हुए। टोबा में 1 मरीज जाँ बहक हुआ और 2 अफराद में वायरस की भी तस्दीक हुई। ना सिक्योरिटी, ना सरकारी टैब, ना ही इंटरनेट की सहूलत, एयर कंडीशन भी खराब। पीर महल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के कोरोना वैक्सीन सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। शहरियों और नर्सिंग स्टाफ का गर्मी से बुरा हाल। सिक्योरिटी न होने से लेडी स्टाफ को लोग हरासा और डराने धमकाने लगे। नर्सिंग अमले का डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान से फौरी सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नैयर शिराजी से। जी नैयर, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील हेड क्वार्टर में बनाया गया कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो मसाइलिस्तान बन चुका है। यहाँ पर जो है स्टाफ जो है, खासकर लेडी स्टाफ है, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जिस कमरे में वो ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, वहाँ का जो AC है वो बराए नाम है, AC नहीं चलता है। हबस है, शदीद गर्मी है, जब वो वहाँ आते हैं तो मज़ीद हबस बढ़ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर नेट और दीगर जो टैब है, दीगर सहूलियात नहीं फराहम की जा रही। दीगर सहूलियात नहीं है, यहाँ पर उनके साथ लोग आकर उनका ये कहना है कि यहाँ पर लोग उनको थ्रेट करते हैं, परेशानी का सामना है। हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी भाई, क्या क्या परेशानियाँ आपको होती है? जी, यहाँ पे लोग आते हैं, वो
آ کے اپنی مرضی کی ویکسینیشن کے لیے ہمیں ڈیمانڈ کرتے ہیں, ان کے پاس ID کارڈ تک نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویکسین لگائیں اور ہمیں جانے دیں. اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی مرضی کی ویکسین لگوانا چاہتے ہیں, جبکہ ہمیں اعلیٰ حکام کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ آپ نے سائنو فارم لگانی ہے فرسٹ ڈوز, یا سائنو ویک لگوانی ہے, یا ایسٹرازینیکا لگوانی ہے, جبکہ لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں انگلینڈ کی لگوائیں, ہمیں امریکہ کی لگوائیں, جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی, اور وہ ہمیں ادھر تھریڈ کرتے ہیں, یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک وہ لوگ آ جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مار کے بھی چلا جائے نا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی بالکل, یہاں پر لوگ تھریڈ کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. کچھ اور لیڈی اسٹاف بھی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے جو ان کو کون سی سہولیات میسر نہیں ہے. جی ہمیں سیکیورٹی ایشو ہے سب سے پہلے تو, کہ یہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے, جو مرضی لوگ مس بیہیو کر کے جاتے ہیں ہمارے ساتھ اتنا. سیکنڈلی ہمارے پاس نیٹ کی سہولت اویلیبل نہیں ہے, ہم اپنے ڈیٹا یوز کرتے ہیں تو. جی بالکل, ان کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے, اپنے ذاتی موبائل سے استعمال کرتے ہیں, ٹیبلٹ. بہت شکریہ نیا شرازی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ضلع بھر کے تمام سینٹرز پر ویکسین لگوانے والوں کی بڑی تعداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے. ویکسین لگوانے والوں میں اوورسیز شہری, طلبہ اور ملازمت پیشہ افراد بھی شامل ہیں. آپ کو بتائیں کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ضلع بھر کے تمام سینٹرز پر ویکسین لگوانے والوں کی تعداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں طیب سیف سے. جی طیب, بتائیے گا اس حوالے سے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کی گئی سختیاں اور اقدامات اب اپنا اثر دکھانا شروع ہو چکے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں تمام ویکسینیشن سینٹرز کی, تو وہاں پر ایک دفعہ پھر سے رش نظر آنا شروع ہو چکا ہے, جس میں ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایسٹرازینیکا ویکسین اور موڈرنا ویکسین بھی یہاں پر آ گئی, جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جنہوں نے اوورسیز جانا ہے وہ بھی ویکسین لگوانے کے لیے آ رہے ہیں, اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کو سرکاری دفاتر میں کام پڑتا ہے یا DHQ میں انہوں نے کسی اپنے علاج معالجہ کے لیے جانا ہے, تو وہ بھی اپنی ویکسین لگوانے کے لیے اب یہاں کا رخ کر رہے ہیں. اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایسا بتائیے گا کہ کون کون سے لوگ ہمارے پاس زیادہ آ رہے ہیں اور ویکسین کون سی لگائی جا رہی ہے زیادہ ہمارے پاس؟ جی ابھی ہمارے پاس سائنو فارم, سائنو ویک, موڈرنا اور ایسٹرازینیکا چاروں ویکسین موجود ہیں. تو ہمارے پاس وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے ٹریول کرنا ہے, آؤٹ آف کنٹری جانا ہے, ان کے لیے موڈرنا اور ایسٹرازینیکا اویلیبل ہے. تو اس لیے یہاں پہ سینٹر میں اب کافی رش ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ سرکاری دفاتر میں جا رہے ہیں, اب ان کو مسئلہ ہو رہا ہے, یا کوئی ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں, تو اپنے سرٹیفکیٹ کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں کہ بیسیکلی ہمیں ویکسینیشن ہو جائے. اسٹوڈنٹس کی کافی بڑی تعداد دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر, کیا اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی کافی سختی ہوئی ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں وہ لوگ؟ جی اسٹوڈنٹس بھی جو بیسیکلی 18 سال سے اوپر ہیں, جن کے ایگزامز ہیں, ان کے لیے بھی یہ ویکسینیشن کارڈ ضروری کر دیا گیا ہے. کچھ جو کالج ہیں, کچھ اسکولز ہیں, انہوں نے یہ مسٹ کر دیا ہے کہ اب آپ جو ایگزامینیشن سینٹر میں آئیں گے تو اپنا ویکسینیشن کارڈ ساتھ لے کر آئیں. تو اس لیے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی کافی تعداد میں آ رہے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے, کیونکہ بہت سے اسکول اور کالجز ہیں, انہوں نے اس چیز کو لازمی قرار دے دیا ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کی ایج 18 سال سے زائد ہے وہ بھی اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائیں گے. اور اس وقت ہم ٹوبہ ٹیکسنگ کی یہ بات ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ میں رواں مالی سال میں جھمرا روڈ پر واقع 325 کنال سے زائد اراضی پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس بنے گا. ذرائع کے مطابق ضلع انتظامیہ نے نقشہ منظوری کے لیے PND ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیا. پہلے فیز میں تقریباً 40 کروڑ روپے کی لاگت سے کام شروع کروایا جا سکے گا. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے. بابر بتائے گا کمپلیکس میں کون کون سے دفاتر شامل ہیں؟ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے. رواں مالی سال میں جو چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے وہ بنایا جائے گا, جس سلسلہ میں چنیوٹ میں جھمرا روڈ پر واقع جو 325 کنال سے زائد رقبہ تھا ریونیو ڈپارٹمنٹ کا, وہاں پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس جو ہے وہ بنایا جائے گا, جس میں پہلے فیز میں 400 ملین روپیز جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. یہ 40 کروڑ روپے کی جو ہے وہ اماؤنٹ ہے, جس سے پہلے فیز میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو, اسسٹنٹ کمشنر اور ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو تمام دفاتر ہیں وہ فرسٹ فیز میں بنائے جائیں گے, جس سلسلے میں 40 کروڑ روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے دفاتر, ایسے ادارے جن کے پیسے جو ہے وہ ریلیز ہو چکے ہیں اور ان کے پاس جگہ نہیں ہے, وہ انہیں ان تمام دفاتروں کو جگہ بھی ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں فراہم کی جائے گی. جس طرح دارالامان میں سالانہ ترقیاتی اسکیم کے پیسے جو ہے وہ اپروو ہو چکے ہیں اور انہیں بھی وہاں پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں ایک جگہ پر جو ہے وہ 8 کنال جگہ جو ہے وہ دی گئی ہے. اور اسی طرح پہلے فیز میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, DC اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفاتر جو ہے وہ بنیں گے. چونکہ چنیوٹ کو 2009 میں ضلع کا درجہ دیا گیا اور 12 سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس نہیں بن سکا تھا, اور ڈسٹرکٹ کمپلیکس نہیں بن سکا تھا. بہت شکریہ آپ کا بابر منیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں آٹو پالیسی خطرے میں ہے. کیا گاڑیوں کی قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں؟ حکومت نے کارساز کمپنیز کو گاڑیوں کی قیمتیں بڑھانے سے روکا
تو डीलर से नई गाड़ियों की बुकिंग भी फिलफौर बंद कर दी है। कारसाज कंपनीज का वफ्द अपने मुतालबात से आगाह करने के लिए आज हुकूमती जिम्मेदारान से मुज़ाकरात करेगा। आपको बताएं कि ऑटो पॉलिसी खतरे में है, क्या गाड़ियों की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं? हुकूमत ने कारसाज कंपनियों को गाड़ियों की कीमतें बढ़ने से रोका तो डीलर्स ने नई गाड़ियों की बुकिंग भी फिलफौर बंद कर दी है। कारसाज कंपनीज का वफ्द अपने मुतालबात से आगाह करने के लिए आज हुकूमती जिम्मेदारान से मुज़ाकरात करेगा। आपको आगाह कर इस अहम खबर के हवाले से कि ऑटो पॉलिसी खतरे में है, क्या गाड़ियों की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं? हुकूमत ने कारसाज कंपनीज को गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने से रोका तो डीलर्स ने नई गाड़ियों की बुकिंग भी फिलफौर बंद कर दी है। जी बिल्कुल, कारसाज कंपनियों का वफद अपने मुतालबात से आगाह करने के लिए आज हुकूमती जिम्मेदारान से मुज़ाकरात करेगा। आपको अहम खबर से आगाह करें कि ऑटो पुलिस खतरे में है, क्या गाड़ियों की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं? हुकूमत ने कारसाज कंपनियों को गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने से रोका तो डीलरों ने नई गाड़ियों की बुकिंग भी फिलफौर बंद कर दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा इस हवाले से। जैसे आपने अभी बताया है कि कारसाज कंपनियों की जानिब से जो बुकिंग है वो फिलफौर रोक दी गई है और जब तक हुकूमती नुमाइंदगान से मुलाकात फैसला नहीं किया जा सकता। इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से जो ऑटो पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई थी, उस ऑटो पॉलिसी के तहत कई कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी की थी और उसके बाद हमने देखा है कि सेल्स में भी वाज़ह इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया था। इसी हवाले से कुछ डीलर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आने जा रहे थे मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको रोका है तो उसके बाद फौरी तौर पर गाड़ियों की सेल्स भी रोक दी गई है, बुकिंग भी रोक दी गई है। बात करते हैं उनसे, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। उस वजह से बताइएगा क्या कहेंगे ऑटो पॉलिसी के हवाले से, क्या गाड़ियों की कीमतें दोबारा से महंगी होने जा रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जो भी मुल्की हालात चल रहे हैं डॉलर के पेश नज़र और बढ़ती हुई स्टील की कीमतों के पेश नज़र, उसके मुताबिक जो अभी मैन्युफैक्चरर्स हजरात हैं वो परेशानी का शिकार हैं कि जितनी महंगाई और जितना डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं। उसके पेश नज़र देखा जाए तो कंपनी की कीमतें बढ़ाने बिल्कुल जा रही थी, लेकिन अभी इस बारे में हम फौरी तौर पे नहीं बता सकते कि वो क्या बढ़ाती है कंपनी या इसको अभी पेंडिंग करते हैं। लेकिन जो कंपनी के नुमाइंदगान है, हायर मैनेजमेंट है, वो डेलीगेशन जो है गवर्नमेंट से मुज़ाकरात में भी शायद आज इंशाअल्लाह ताला आदमी फैसला हो सके उस बारे में, तो आज रात तक या कल तक जो है ये सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये बताएगा कुछ कंपनीज ने अपनी कीमतें बढ़ा भी दी थी लेकिन उसको दोबारा से रिवाइव भी किया गया, तो इसी तरह से रिवाइव किया जा रहा है गवर्नमेंट के कहने पर। ऑटो पॉलिसी के हवाले से अगर खासतौर पर देखें, बुकिंग के हवाले से देखा जाए, गाड़ियों की बुकिंग ज़्यादा हो रही है, डिलीवरी जो है वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार भी हो रही है उसकी वजह से। तो ये भी ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा सेल होने की वजह से भी बुकिंग जो है ताख़ीर का शिकार है या डिलीवरी जो है ताख़ीर का शिकार है? जी, इसमें दूसरी मुख्तलिफ कंपनियों का तो बिल्कुल ताख़ीर चल रही है, लेकिन पाक सुजुकी मोटर कंपनी की तरफ से इस तरह की ताख़ीर अभी नहीं है, जो कि न्यू ऑटो पॉलिसी के मुताबिक रहते हुए उसको बिल्कुल 100% पूरा करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ती हुई डिमांड, लोगों में गाड़ियों की ख़रीद की जो अभी क़ुव्वत बढ़ी है, उसके मुताबिक देखा जाए पाक सुजुकी कंपनी भी यही चाह रही है कि जो ऑटो पॉलिसी है उसके मुताबिक रहते हुए 60 डेज़ में डिलीवर की जाए गाड़ी। लेकिन अभी डिमांड ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैन्युफैक्चरर हजरात इसी कमी को पूरा करने के लिए जो है ना वो दिन रात पॉलिसीज 170 तक माहिरीन बता रहे हैं कि, और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, जिस तरह से आपने बताया कि स्टील के पार्ट्स जो स्टील की कीमतें जो बढ़ रही हैं, और अगर गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात सपोजिटली अगर कामयाब नहीं होते तो क्या आप फ्यूचर क्या देखें? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है अगर गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मैं भी शायद अनकरीब कीमतों में खासा इजाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि डॉलर की कीमत इस टाइम 167 प्लस कर गई है। तो जाहिर है जो डॉलर के ऊपर परचेजिंग हो रही होती है, स्टील वगैरह की परचेजिंग है, उसमें इजाफे के पेश नज़र ये बढ़ाना मजबूरी बन जाएगी। ठीक है, कीमतें बढ़ाना जो है वो कंपनीज की मजबूरी बन जाएगी। स्टील की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ डॉलर की कीमतें भी जो है बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से कंपनीज खासी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ऑटो पॉलिसी कहती है कि गाड़ियाँ जो है वो सस्ते दामों शहरियों को जो है फ़रोख्त की जाएँ। तो अब इन तमाम चैलेंजेस के अंदर किस तरह से क्या पैटर्न अपनाया जाएगा, गवर्नमेंट क्या मुज़ाकरात करेगी, ये आज शाम तक जो है वो मंजर आम पर क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी, जिसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकेगा कि कीमतें जो स्टील की प्राइसेस में इजाफे से कीमतों में बढ़ाने का जवाब बताया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शिराज भट्ट तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि महकमा तालीम की नाअहली के बाद सरकारी स्कूल के तलबा किताबों से महरूम, तालीमी सेशन शुरू हुए 1 माह गुजर गया।
स्कूलों में किताबें पूरी ना हो सकीं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस की किताबें कम पड़ गईं। नए दाखिल होने वाले तलबा को किताबों के हुसूल के लिए इंतजार करना होगा। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स के तलबा व तालबात को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं, लेकिन इस हवाले से ये फैसलाबाद में बात सामने आई है कि 1 माह हो चुका है सेशन के आगाज़ में, लेकिन अक्सर स्कूल्स ऐसे हैं जिनको किताबों की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो सकी और वेयर हाउसेज में भी किताबें जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं। इस हवाले से वेयर हाउस फैसलाबाद के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद ज़फ़र, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि रवां साल सिंगल नेशनल करिकुलम अनाउंस किया गया था और प्राइवेट सेक्टर में कहा गया था कि गवर्नमेंट की किताबें ही पढ़ाई जाएंगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पब्लिश नहीं कर सका किताबें, लेकिन अब सरकारी स्कूल्स में ही किताबें कम पड़ गई हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो इंट्रोड्यूस हुआ 1ली से 5वीं तक, उसकी किताबें पहले आई तो ठीक थी, लेकिन इस दफ़ा एनरोलमेंट कुछ ज़्यादा हुई है और हमने तो उसी हिसाब से जितनी पिछले सालों में एनरोलमेंट होती उससे 5% ज़्यादा किताबें थी वो तकसीम की हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर एडमिशन इस दफ़ा ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से किताबें जो हैं वो शार्ट हुई हैं। कुछ किताबें जो हैं ना वो शार्ट हुई हैं। हर स्कूल में कुछ ना कुछ किताब ज़रूर गई है। पहले फ़ेज़ में जब उनकी एनरोलमेंट ज़्यादा हुई तो दूसरे फ़ेज़ में जब वो आए तो उस वक्त किताबें जो हैं वो शार्ट हुई हैं। 3-4 किताबें, जैसे हमारे पास कायदा जो था वो मौजूद है, क्लास 2 की किताब मौजूद है, 1, 3, 4 और 5 की किताब जो है वो आलमोस्ट शार्ट हो गई इस वक्त। और उस सिलसिले में हमने पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जितने वेयर हाउसेज इंचार्जेस थे उनकी मीटिंग की और उनसे डाटा लिया कि कितनी किताबें और चाहिए, डिमांड एडिशनल डिमांड जो है वो हमने कलेक्ट करके उसको डाटा इकट्ठा करके हमने अपने CEO ऑफिस में जमा कराया और उन्हें आगे भेज दिया PMI को। होपफुली अब देखें कि जितनी जल्दी हो सकें आ जाएँ किताबें, ताकि बच्चों के अंदर जो ये एक अनरेस्ट है वो ख़त्म हो, ताकि बच्चे के हाथ में किताब होगी तो फिर वो सोचेगा। अब किताब नहीं होगी तो फिर उसके लिए पहले ही कोरोना ने जो है वो काफ़ी सारा बच्चों का नुकसान किया और अब किताब अगर बच्चे के पास नहीं होगी तो वो बिल्कुल वो फिर वही हिसाब होगा। किताब आनी ज़रूरी है। सर जो नए बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं यकीनी तौर पर फिर उनको किताबें नहीं मिलेंगी, तो इस हवाले से कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा उन बच्चों को किताबों के लिए? जी अब हम रोज़ाना रिमाइंड तो करवाते हैं। अब हो सकता है वहाँ पे प्रिंटिंग का मसला हो, पूरे पंजाब का ये इशू होगा, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कब। ये हम रोज़ाना बताते हैं अपने ऑफिस को, हायर ऑफिस को, जी बच्चों की डिमांड, बच्चों की एनरोलमेंट ज़्यादा हो रही है और किताबों की शदीद ज़रूरत है। और हम 6ठी से ऑनवर्ड तो हम कर रहे हैं कि जो पुरानी बुक्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, बच्चों से लेके हम उनको दे रहे हैं, लेकिन चूंकि ये 1ली से 5वीं तक नया सिलेबस है, ये किताब पहले हमारे पास मौजूद नहीं है, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है और होपफुली अल्लाह करे कि ये जितनी जल्दी हो सके मसला हल हो जाए। बिल्कुल फैसलाबाद की तरफ से जो डिमांड है वो भिजवा दी गई है हुकूमत को, ताकि तमाम बच्चों को किताबें जो है मिल सकें। इस हवाले से बच्चों के पास किताबें ना होने के बायस वो तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं यूरोपीय यूनियन से GSP+ स्टेटस का मजीद 2 साल एक्सटेंशन का मामला। मशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद की जानिब से सनतकारों को कामयाबी की नवीद सुना दी। एक्सपोर्टर्स की जानिब से खुशी का इजहार किया गया, मसाइल के अंबार में अच्छी खबर करार दिया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या कहना है एक्सपोर्टर्स का इस बारे में? GSP+ यूरोप की तरफ से पाकिस्तान को मिलने का मामला 5 साल फिर 2 साल एक्सटेंशन और फिर से 2 साल एक्सटेंशन की बातें हो रही थी। एक्सपोर्टर्स परेशान थे क्योंकि इस वक्त यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद जमा करवाई गई थी पाकिस्तान की GSP स्टेटस के खिलाफ, कैसे मुलतवी किया जाए, लेकिन दोबारा से एक्सटेंशन के ऊपर एक नवीद आई है जिसे खुशाइंद करार दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे अहम मसाइल इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर मौजूद हैं, वहाँ एक अच्छी नवीद भी सामने आई है। बिलाल जमीर साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पूरे पाकिस्तान के बूमा के, इनसे बात करते हैं। अच्छा बिलाल साहब, कैसे देख रहे हैं कि क्या ये किस हद तक फायदेमंद होगा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मजीद आगे लेके बढ़ना होगा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए? मुतवातिर वो टैक्स अदा किया जा रहा था, उसका रिकॉर्ड जो मुतलका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर और अफसरान हैं उनकी जानिब से ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट कर दिया गया और जिसके बाद जो मुतलका टैक्स गुजार हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उन्होंने टैक्स अदायगियाँ नहीं की गई और उसके इवज़ उनसे रिश्वत तलब की जा रही है। ताहम जो मुतासरा शहरी हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त DG एक्साइज़ और डायरेक्टर एक्साइज़ को दायर कर दी गई है। डायरेक्टर एक्साइज़ हुकाम के मुताबिक
मामला सामने आने पर 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है जो कि तहकीकात कर रही है और इन तहकीकात में अगर मुतलका जो कसूरवार मुलाजमीन पाए जाते हैं उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका उमर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, गैर कानूनी तौर पर सरकारी रकबे पर बनी दुकानें गिराए जाने का मामला। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन टोबा ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह को 3 सितंबर को जिला कौंसल चौक ऑफिस में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर सरकारी रकबा पर बनी दुकानें गिराए जाने का मामला है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन टोबा ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह को 3 सितंबर को जिला काउंसिल चौक ऑफिस में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर सरकारी रकबे पर बनी दुकानें गिराए जाने का मामला है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन टोबा ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह को 3 सितंबर को जिला कौंसल चौक ऑफिस में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर सरकारी रकबे पर बनी दुकानें गिराए जाने का मामला है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन टोबा ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह को 3 सितंबर को जिला कौंसल चौक ऑफिस में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर सरकारी रकबे पर बनी दुकानें गिराए जाने का ये मामला है। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन टोबा ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह को 3 सितंबर को जिला काउंसिल चौक ऑफिस में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर दुकानें गिराई गई इमाम बारगाह रोड पर। इस पर दरख्वास्त दी गई थी शहरी की जानिब से, जिसके बाद अब असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टैक्सिंग एंटी करप्शन ने जो है असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह को जो है 3 सितंबर को समांतर रिकॉर्ड के साथ तलब किया है। इससे पहले भी दोनों अफराद को तलब किया गया था, दोनों अफसरान को, लेकिन उस वक्त रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया जा सका इन अफसरान की जानिब से। अब 3 सितंबर की इनको डेट दी गई है और नोटिस में बाकायदा लिखा गया है कि अगर 3 सितंबर को पेश होकर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह वड़ायत जो है ये अगर रिकॉर्ड जमा नहीं करवाते तो एंटी करप्शन जो है वो एक तरफा कार्रवाई का हक महफूज रखती है। इस हवाले से मैं बताना चलूँ कि 1998 और 99 के दरमियान पंजाब गवर्नमेंट ने 18 मुख्तलिफ जगहें जो हैं वो सपुर्द की थी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, इन जगहों को फरोख्त करके इनकी तामीर जो है, इनका पैसा जो है वो सड़कों की तामीर पे लगाया जाए। लेकिन इमाम बारगाह रोड पर दुकानें जो हैं उनको गिराने का हुक्म मौजूद नहीं था। इसके बावजूद उन 45 दुकानों को जो है गिरा दिया गया, जिसके बाद अब मामला एंटी करप्शन में जेर समाअत है। एंटी करप्शन इंक्वायरी जो है मुकम्मल जारी रखे हुए हैं, जिन्होंने 3 सितंबर को एंटी करप्शन जिला कौंसिल चौक बिल्डिंग में जो है तलब किया है असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह वड़ायत को। जी बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर सरकारी रकबे पर बनी दुकानें गिराए जाने का मामला। असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन टोबा ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी और सीईओ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्लाह को 3 सितंबर को जिला कौंसिल चौक ऑफिस में रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। चिन्योट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की अदम तवज्जुही या गफलत। पहाड़ी इलाकों में वाटर सप्लाई गुज़श्ता 5 रोज से बंद है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में ज़िले और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आई है। पहाड़ी इलाकों के मकीन अरसा दराज से साफ पानी की सहूलत से महरूम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और गुज़िश्ता 5 रोज़ की बात की जाए तो चिन्योट का इलाका मौज़म शाह, मोहल्ला गरिया, मोहल्ला राजा, मोहल्ला कोटली और इसके अलावा मोहल्ला आली समेत जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है और पाइपलाइन फटने की वजह से जो है वो इलाका मकीन गुज़िश्ता 5 रोज़ से वो पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, हमसे बात करते हैं। वजह बताइएगा कि पूरे इस इलाके में वाटर सप्लाई लाइन जो है वो नहीं पहुँच रही, पानी की बंदिश है, क्या कहते हैं? जी, ये पानी सप्लाई जो है, वाटर सप्लाई हमारे इलाके में अरसा दराज से यही प्रॉब्लम चल रही है जी। तो इंतज़ामिया से बारहा गुजारिश की है कि इसको मुस्तकिल बुनियाद पे हल किया जाए और हमारे मसाइल जो है वो हल किए जाएँ। मस्जिद में पानी नहीं होता, घरों में पानी नहीं होता
अवाम पानी को की बूंद बूंद को तरस गई है जी। इंतज़ामिया को चाहिए कि हमारे जो है मुतालबात को तस्लीम करते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर पानी की फराहमी हमें मुहैया करे। हाँ जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो नाकिस पाइप लाइन बिछाएगी, जिसके बायस आए रोज जो है वो पाइप फट जाता है और पानी का मसला जो है वो इलाका मकीनों को उसके हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना। मसला हल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।